Misra, Principal Law College Executive Officer, Principal Law College Nevada, under Magad University. I was instituted permanently affiliated from Magad University, India, approved by Government of Bihar, Department of HRD, Bar Council recognized since last 35 years. I had been Dean Faculty of Law, Magad University, India, since 2004 to 2012, and in between I had been Pro-Vice Chancellor B.N. Mandal, University, Madhepura. This institution is established by me with the help of local people, politicians, and legal consultants, the then EP, GP of Nevada in the year of 1996. Since then, this institution is continuously imparting legal education among the legal learners and the downtrodden class, especially having roti satua खा करके remote district Nevada is a backward district. Since then, our students are getting legal knowledge degree from this institution. This is not last but least that the product of this institution since last 30 years are serving in the field of legal education different corners and different states of India on big post of legal and apex. Even our product is working well in apex court, high court and different district courts of the country. We have latest always we have been, this institution has been blessed and encouraged by the member of Bar Council states, especially our guardian G.N.P. Jadhav Sahab, Manan Misra Sahab, and other present chairman and the then S.M.P. Sinha Sahab. Everyone blessed this institution, and the institution is working on their guidance and legal patronage. From this year, we have taken hard step to improve the legal education. Practically, the moot court is imparted in second year, but in third part, final year, students, a internship is strictly followed. Minimum 90 days Sarista attending certificate or chamber attending certificate from the court's advocate is essential for filling of the university exams for. It is a pride for the state that in affiliated college, particularly in Magad University, LLB honors course is only imparting this institution. The Bar Council of India has been pleased to grant the recognition since the session 2019-20 and was LLB honors course. We should also thankful to the Bar Council of India that other than Chanakya Law University, nowhere honors course is imparted. So this is the second year, second batch of the honors course. In between, in the meantime, I just bring to your kind notice that honors result of this last examination 2019-20 has not been published as yet by the university, and the students are pressing hard. For this we have requested
our Honorable Controller of the University to publish immediately. Due to non-publication of LLB honors, the session of next session, filling of examination form has been stopped by the university. Unless until they publish the result honors, they will not publish the ensuing examination form. In between the Vidhi Vimarsh Patrika, which has been issued by you learned people, the students in particular in Hindi medium. सर जनरल और ऑनर्स कोर्स में डिफरेंसेस क्या है, क्या आगे होगा छात्रों के? छात्रों के लिए जनरल ऑनर्स कोर्स में ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे विधि का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च डेवलप किया। अभी आप आर्ट्स फैकल्टीज में, साइंस फैकल्टी में देखते होंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट करने का आधार पहला बनता है, फर्स्ट प्रेफरेंस ऑनर्स स्टूडेंट को मिलता है। BA ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, दे विल बी एलिजिबल फॉर PG, MA इन पॉलिटिकल साइंस अदर देन दी पास कोर्स और जनरल कोर्सेज। तो कंसेप्शन इसमें पेपर्स बढ़ जाते हैं। 4,800 4800 पेपर उनको पूरे कोर्स में पढ़ने पड़ेंगे। तो ऑनर्स वेरी उपयोगी एक अच्छी चीज़ है। एक सब्जेक्ट का, अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, हम कॉन्स्टिट्यूशन का दो पार्ट वहाँ पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑनर्स कोर्स अच्छा कोर्स, अच्छी कोर्स है। और विद्यार्थी की हमारे यहाँ सीट 120 सीट मिला है बाल काउंसिल से, वो सीट फुल रहते हैं। लड़के भी अच्छा किए हैं। रिजल्ट आ जाता है, मैं समझता हूँ कि हमारे विद्यार्थी कम से कम तो 25% 30% फर्स्ट डिवीजन आएगा, फर्स्ट क्लास में वो लोग लाएंगे। और उम्मीद है जैसा कि विद्यार्थियों ने मेहनत किया, उनके सजेशंस लड़े और ये सारी बातें आई, तो यही सब चीज़ है। और मैं इस बात के लिए बड़ा आभार प्रकट करता हूँ आपके टीवी को, रणविजय बाबू को, कि कम से कम लॉ तो नेग्लेक्टेड एजुकेशन, जितना इम्फेसिस गवर्नमेंट का आर्ट्स पर पड़ता है, साइंस पर पड़ता है, इंजीनियरिंग पर पड़ता है, मेडिकल पर पड़ता है, अगर लॉ, जबकि लॉ भारतीय संविधान में हर एक व्यक्ति को जागरूक कहता है कि जागरूक है। इसके डिफरेंट लॉ जो है वो व्यक्ति के मानवीय जीवन से ही शुरू होता है। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर, एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए कंज्यूमर। ह्यूमन बीइंग के पहले भी जो बच्चे गर्भ में भी रहते हैं वो भी कंज्यूम करते हैं, और वहाँ भी आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन लागू होता है। तो लॉ का शिक्षा प्रारंभिक स्टेज से ही होनी चाहिए। कई मंच पर मैंने इस बात को उठाया कि जैसे आप अन्य सब्जेक्टों को, महापुरुषों के इतिहास पढ़ाते हैं, महापुरुषों की जीवनी पढ़ाते हैं, आप क्लास 7 से ही बच्चों को लॉ की डिग्री दीजिए, लॉ की जानकारी थोड़ी थोड़ी दीजिए। हमारे संविधान निर्माता कौन थे, संविधान के कितने अंग हैं, संविधान का क्या उद्देश्य है, डेमोक्रेसी क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है। बच्चे हमारे मम्मी पापा दोनों सर्विस में, बच्चे हमारे गए दुकान पर, फुर्सत नहीं उनको, चले गए, अचानक उनको कॉपी किताब की ज़रूरत पड़ी, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की ज़रूरत पड़ी, वो दुकान पर गए, उस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की दाम 25 रुपया है, दुकानदार कहा कि नहीं 26 रुपये। लड़के को जब ये जानकारी हो जाएगी कि बेटा लॉ कहता है कि MRP से ज़्यादा पैसा नहीं पेमेंट करना है, तो ये स्टडी हम बच्चों को 7th में ही दे देंगे, अर्लियर स्टेज में देंगे। तो प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन से ही लॉ की पढ़ाई, विभिन्न विषयों की संरचना इसमें की जानी चाहिए। मैं सरकार से, आप विधि जगत से, लोगों से, माननीय कुलाधिपति कुलपति जी से, सेकेंडरी बोर्ड के सिलेबस निर्माता से अनुरोध करना चाहता हूं कि लॉ का सिलेबस, लॉ की पढ़ाई, एडिटिंग बच्चों को प्रारंभिक स्टेज से ही दें तो और इसकी ज़रूरी है। और संविधान में इसका नैतिक दायित्व भी है कि आप सभी लोगों को विधिक रूप से जागरूक बनाएंगे, विधिक रूप से साक्षर बनाएंगे, और सरकार से लेकर के एपेक्स कोर्ट तक का काम भी चल रहा है, आगे भी बढ़ेगा। अपने कॉलेज में शुरुआती से लेकर अब तक का सफर में
जो चैलेंजिंग बीच बीच में आया है जी। उसका थोड़ा सा अगर आप चर्चा करना चाहें तो। देखिए, विधि शिक्षण में मैं बताया शुरू से नेग्लेक्टेड एजुकेशन रहा है, जबकि इसको फर्स्ट फ्रंट पर होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव जिस समस्या को नहीं सोल्व कर पाता है, लेजिस्लेटिव जिस समस्या को नहीं सोल्व कर पाता है, वहाँ हमारा रूल ऑफ लॉ फंक्शन करता है और जुडिशरी से क्लियर होता है। कर्नाटका स्टेट में, हमारे बिहार से छोटा स्टेट है, जहाँ लॉ की यूनिवर्सिटी है, विधि यूनिवर्सिटी है। आश्चर्य बात है कि हमारे यहाँ इतनी सारी यूनिवर्सिटी है, मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटी अलग है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी अलग बन गई और डिफरेंट आर्ट्स की यूनिवर्सिटी अलग है, लेकिन लॉ की एक यूनिवर्सिटी अलग नहीं है। जबकि 23 संभवतः, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि 25 से 30 के बीच में संबद्ध महाविद्यालय और मान्यता प्राप्त बार काउंसिल से बिहार में शिक्षण संस्थान कार्यरत है। कई इतने नंबर ऑफ कॉलेज में सरकार ने यूनिवर्सिटी बनाई, तो आप विधि जगत के लोग क्यों यूनिवर्सिटी, इस चीज चाहिए लॉ को यूनिवर्सिटी क्यों चाहिए, क्यों सरकार इसलिए इसलिए चाहिए कि आप किसी यूनिवर्सिटी में सेशन देखेंगे कहाँ चल रहा है, किसी यूनिवर्सिटी में कहाँ चल रहा है, किसी में पीछे है, सिलेबस करिकुलम नहीं है। आश्चर्य होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में, इसके लिए यूनिवर्सिटी दोषी नहीं है। हमारे यहाँ एनुअल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है जो पूरे इंडिया में नहीं है। एनुअली साल में एक बार परीक्षा, जबकि सारे जगह सेमेस्टर की परीक्षा होती है। ये दायित्व विधि संकायाध्यक्ष का बनता है कि माननीय कुलपति जी को एग्जामिनेशन बोर्ड में इस मैटर को ले जाए, यहाँ सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो। अभी सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है, सीबीएसई सिस्टम चल रहा है। तो ये सारी जो नए कोर्स का यूजीसी का प्रारूप है और डिफरेंट यूनिवर्सिटी में लागू है, मेरे यहाँ नहीं है। मैं डीन रहता तो मैं इस बात को रखता, और विश्वविद्यालय इस बारे में तो तभी ध्यान देंगे जब आपके डीन इस बात को रखेंगे, जब इसके प्रमुख इस बात को रखेंगे। तो मैं तो अनुरोध करूंगा कि आपके पत्रिका के माध्यम से राज्य में एक लॉ की यूनिवर्सिटी अलग एस्टेब्लिश किया, जो राज्य के पूरे लॉ की परीक्षाएं, लॉ का संबंध, लॉ के शिक्षण संस्थान के विकास की दायित्व वहाँ हो और वहाँ से ये कंट्रोल हो, ताकि इस तरह से उसकी चीजें हो। अब एक यूनिवर्सिटी में 2 लॉ कॉलेज है। अब बताइए, जहाँ 32 और 34 जनरल कॉलेज है, 2 लॉ कॉलेज के बारे में सब कुछ सोच लेने के बाद विश्वविद्यालय अंतिम में लॉ के बारे में सोचे। अभी देखिए, आपका जितना टेक्निकल एजुकेशन का था, एक यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे किसी जिला में हो, राज्य में, वहां से होगा। तो लॉ में भी माननीय नीतीश जी का विकास पुरुष कहे जाते हैं, हम अनुरोध करेंगे कि अपने विकासात्मक रूप में आप, अभी हमारे बार काउंसिल के अध्यक्ष भी बिहार के हैं, आपके अभी बार काउंसिल में चुनाव हुआ, हमारे अभी स्टॉलवर्ड्स DNP यादव साहब हैं, जिन्होंने विधि शिक्षण को आज 50 वर्षों से बहुत निकटता से देखा और एक एक चीज को देखा है, और इस तरह की चीजें आई है। आज देखिए कि माननीय उच्च न्यायालय ने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए जो कमी थी, सारे जगह इस सेशन में नामांकन पर रोक लगा दी। हम लोग नामांकन प्रथम वर्ष में नहीं ले रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं। पूरे बिहार में नामांकन पर प्रथम वर्ष में रोक लगी हुई है। हम चाहेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश इसकी जल्द से जल्द सुनवाई करके, और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसे कॉलेजों को जरूर अनुमति दें कि जहाँ नामांकन हो सके। आने वाले जी 21-22 का सेशन पूरे बिहार में चाणक्य और सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी छोड़ करके बंद है। भाई, चाणक्य और सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी, बोथ यूनिवर्सिटीज आर एडेड and fully managed and maintained by the central government, state government। पूरी उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ उपलब्ध कराया जाता है, वो तो फुलफिल रहेंगे।
लेकिन बिहार जैसे प्रदेश में जितनी जरूरत है विधि शिक्षण की, उसमें जब तक संबद्ध महाविद्यालय, अंगीभूत महाविद्यालय को नहीं जोड़ा जाएगा, उनकी स्थिति को नहीं सुधारा जाएगा, तो हम समझते हैं कि ये विधि जागरूकता, विधि शिक्षण प्रसार या विधि की स्थिति उतनी मजबूत नहीं होगी। इसलिए हम आप सभी से शिक्षा, विधि शिक्षा से जुड़े सभी तमाम उच्च पदस्थ पदाधिकारियों, अपने कैंपस से इंटर्नशिप और कैंपस से जो करियर वाले जो अलग अलग कंपनी वाले जैसे जो करते हैं करना, यहाँ अपने कॉलेज में सुविधा है या नहीं? हमारे कॉलेज में मूट कोर्ट की सुविधा है। तो मूट कोर्ट सेकेंड पार्ट में हम लोग बच्चों को टीचर द्वारा ट्रेनिंग दिलाते हैं, लेकिन प्रोविजन है कि एक्चुअल कोर्ट का उनको सीन देखना। इसके लिए हम लोग संबंधित जिला अधिकारी, जिला शिक्षा, जिला न्यायाधीश, डीए साहब के यहाँ पत्र जाता है। हमारे शिक्षक वहाँ हैं जो सप्ताह में सैटरडे और फ्राइडे डिफरेंट कोर्ट्स में ग्रुप बना करके कुछ लड़कों को वो कोर्ट में भेजते हैं। लेकिन चूंकि नवादा सिविल कोर्ट है और बगल में हमारे बिहार शरीफ के लड़के हैं, गया के लड़के हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि जब इंटर्नशिप वकील के माध्यम से, एडवोकेट के माध्यम से लेंगे, तो निश्चित रूप से जो एडवोकेट प्रैक्टिशनर जिस कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे उसके कोर्ट में हमारे विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देंगे। इसलिए हम प्रोस्पेक्टस में देते हैं कि 65 किलोमीटर के रेडियस में जो भी जहाँ भी कोर्ट्स हैं, वहाँ के अधिवक्ता हमारे बच्चों को 90 दिन की ट्रेनिंग की इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट देंगे और तभी हम उनको नहीं पार्ट थर्ड फाइनल ईयर, पार्ट 2 में हम उनको ट्रेनिंग कॉलेज में देंगे, पार्ट 3 में वो एक्चुअल इंटर्नशिप करेंगे। टोटल 90 डेज का उनको देना है, वर्किंग लेकर सर्टिफिकेट और लाना है। तो मैं आपकी टीम और इस सोच समग्र के लिए, इतने ट्रबल उठाने के लिए हम आभार प्रकट करते हैं। और देर से ही लेकिन दुरुस्त मुकाम रिजल्ट विधि शिक्षण के विमर्श में निकलेगा। इस पत्रिका के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं पूर्णतः सफलता के साथ हमारी योजना इस कॉलेज में मास्टर ऑफ लॉ पढ़ाई का निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। दुर्भाग्य है, इस संस्थान का दुर्भाग्य है कि 35 वर्ष से चलने वाली संस्था, जिसको राज्य सरकार, विश्वविद्यालय और बार काउंसिल ने मान्यता दे रखा, वहां 2 बार मास्टर ऑफ लॉ की निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा की गई, लेकिन दोनों बार निरीक्षण प्रस्ताव को विश्वविद्यालय स्तर पर ही रोककर रखा गया। विगत वर्ष में हमारे शिक्षा मंत्री जी आए थे, उन्होंने मंच पर, कुलपति जी तत्कालीन थे, इस बार खुल जाएगा, नहीं खुला। वर्तमान कुलपति जी अभी हैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूं और आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे जिला में जहां की 35 सीट है, LLM की पढ़ाई की अनुमति दे तो और ज़्यादा लाभान्वित होगा और लोगों की इच्छा पूर्ति होगी। अब पटना यूनिवर्सिटी में 25 सीट, भागलपुर, यही 2 यूनिवर्सिटी है पूरे बिहार में आपका जहां मास्टर ऑफ लॉ की पढ़ाई होती है। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन अलग है, सेंट्रल में अलग है, लेकिन किसी भी संबद्ध महाविद्यालय या दूसरे यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ लॉ की पढ़ाई नहीं है। तो विश्वविद्यालय में और इस महाविद्यालय के 2 बार निरीक्षण हुआ, दोनों बार रिपोर्ट अच्छी आई, लेकिन नहीं हो सका। ये दुर्भाग्य।